When is more required self love? आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट वो पकड़ नहीं पाएगा। आप सिर्फ काम 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 काम, ढंग से खाना पीना, किसी का होश नहीं आपको, आप बाहर नहीं जा रहे हो, किसी फ्रेंड से नहीं मिल रहे हो, आपने वो बाउंड्री सेट करी है या नहीं करी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Globally, 33% of adults are said to be lonely. It is as deadly as smoking 15 cigarettes a day. रूठे दिल रूठे दिल रूठे दिल। अकेलापन। Self love is the first and purest form of love. Self-love. Self-love, properly understood. How do you define self-love? Welcome to the Open Talk Show. My name is Shaheen. I am the host of the Open Talk Show. आज हमारे साथ है अन्वेषा जो कि एक सेल्फ कोच है। आज हमने काफी सारे टॉपिक पे बात करी सेल्फ लव के बारे, साथ में हमने बात करी मेंटल हेल्थ की, जो मेंस मेंटल हेल्थ है उनके बारे भी बात करें। प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आने वाले एपिसोड के बारे नोटिफिकेशन मिले। Hi Anvisha, welcome to the Open Talk Show. Hi Shaheen, thank Yeah. you for inviting me. You're welcome. Okay, first of all, I want to know about you. How are you? I'm good, how are you? Good, good. Good to see you here. Tell me about you, your background, what you do first, so that हमारे audience को ये पता लगे कि आप कौन हो. Okay, so tell me about you. So basically I'm a life coach and a self-care coach. And I am associated with NGOs. I am also doing law. So basically I'm a law student as well now. Oh, right. Yeah. Okay, how was the journey up to come here? Journey, I would say that was very interesting. Okay. Because when I was trying to figure out that what I want to do, I found that people are not really, they don't know how to do, self-love, self-care. They are all into, करियर में क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, वो लोग खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. So Right. I thought this is something which can be like, a very good thing to do. Plus यहाँ पे इंडिया में अभी लाइफ कोचिंग और सेल्फ केयर कोचिंग का ना बूम नहीं आया है. Okay. So लोगों को भी उतना आइडिया नहीं है. That also I found, अगर देखा जाए 2010 से पहले ना, there is nothing what like I never know that कि 2010 से पहले कि सेल्फ केयर नाम का कोई चीज़ भी होता थे. And nowadays, especially after 15, okay, there's a lot of thing come in the by the generation change. Okay, so yeah, new thing has come. So I would like to know what is self care and how the way should maintain by the generation, by the gender as well. Self-care and self-love is something very important. Because आपके बहुत सारे गोल्स होते हैं जिनको आपको अचीव करना होता है, बट वहाँ पे ना सबसे बड़ा एक गोल होता है जो हम लोग बहुत कन्वीनियंटली ना उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर हम लोग को पता ही नहीं होता उसके बारे में, विच इज सेल्फ लव. जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद की केयर नहीं कर पाओगे, तब तक वट एवर यू आर डूइंग आप वो शायद उतना ढंग से नहीं कर पाओगे. बिकॉज आपके रिलेशंस लोगों से होते हैं, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, वो रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा ना कहीं कहीं कम होने लगते हैं बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ. आपने एक गोल बना लिया कि मुझे ये करना है, आप सिर्फ उसी चीज़ में रहोगे, आपको ये नहीं दिखता है कि आपको इसके अलावा भी और चीज़ें हैं विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट. ऐसे क्या क्या चीज़ें होते हैं? फर्स्ट, गिविंग टाइम टू योर सेल्फ. Okay. Second, So can you just brief me about, see, in the movies I lot of seen is a different way. Can you, as a self coach you have done, so can you just brief me about like how, when is required to, we should love ourselves more than we, when is more required self love? every time. Every time, okay. But when you're asking about कब सबसे ज़्यादा, Yeah. उस टाइम पे ना आपको उतना होश नहीं रहता है कि हाँ हमें ये भी करना है, बिकॉज यू आर इन दैट जोन कि अब इसके बाद क्या करें. राइट, आपको कोई काम नहीं हो रहा है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप एंग्शियस होने लगते हो. बट आप उन चीज़ों को ना आप
पहले से आप अगर बी सेल्फ अवेयर. Right. So I personally believe one thing that I think, okay, what I felt, self-care is like, okay, you should never lie to yourself. That is in the first place, okay. I personally feel, okay, that's my point of view. So first, okay, you should not lie to yourself whatever you're doing, okay, what the way you think, and you should know that every individual is a different, okay. So you need to understand that you're the different too, okay, but whatever you're doing good, okay, that I know. And I'm gonna ask you the same questions. What do you see on this? I mean, is it similar or something else? About myself. Yeah, I mean, see, I just want to know that self-care is nowadays, there's a lot of coaching also come in this market right now. People talk about self-care, okay, self-love, okay. So why it's come out this word, and why it's very important? It is, see, this is very basic. जिसको हम बेसिक नहीं मान रहे हैं, जिसको हम सोचते हैं अच्छा सेल्फ लव, दिस इज समथिंग बिग, बट इट्स वेरी बेसिक. ओके, राइट. अब क्या होता है ना कि आपने गोल बना लिया है कि मुझे ये काम करना है अभी, और आप ना वो टाइम देखते हो कि अच्छा ये 6 घंटे का काम है, आई विल डू इट इन 6 आवर्स. बट उन 6 घंटों के बीच में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है? इज़ देयर एनीथिंग एल्स विच यू विल नीड, जिसका भी टाइम आपने नहीं जोड़ा है? लोग ढंग से खाना भूल जाते हैं अगर वो काम कर रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम था जैसे, उसमें लोग खाना भूल जाते थे कि अच्छा ठीक है अभी वर्क फ्रॉम होम है तो फटाफट कर लेते हैं बिना ब्रेक लिए और समथिंग, इट विल बी लाइक डन. बट पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड. उनको लगता है कि अभी अगर हमने काम कर लिया, अभी अपने के ऊपर अपने काम पे ध्यान दे दिया तो बाद में तो चीज़ें विल गेट सेटल्ड एंड ऑल, राइट. बट अगर आपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान so when generally see everyone taking care of themselves, okay, they knows that I'm into in myself too, but when talk about the लोग जनरली ये बात करके आई लव माई सेल्फ, आई but but they are not really, okay, in reality, because when they are to somebody, आप किसी से बात कर रहे हैं, sometime वो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाते हैं टू द अदर पर्सन. सो आई वांट टू नो दैट कि जैसे इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे अलग अलग सिनारियो पे. हम सेल्फ केयर में आई नो दैट कि हमें अच्छा खाना चाहिए, ओके, आप थिंकिंग, वो सारी चीज़ें आती है ना, थिंकिंग वगैरह. सो हाउ व्हाट यू गोना मेंशन ऑन दिस? सी, एक जो बहुत सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है आपके सराउंडिंग में लोग कैसे हैं. इंटरेस्टिंग, या राइट. आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, ठीक है, आपको रोज़ाना बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बट आपको एग्जैक्टली किस तरीके के लोग चाहिए अपनी लाइफ, राइट. इट मैटर्स अ लॉट. अगर आप टॉक्सिक लोगों से आप घिरे हुए हो, आपका जो माइंड होगा ना वो नेगेटिविटी के ऊपर और टॉक्सिसिटी के ऊपर ज़्यादा जाने लगेगा. या, आई बिलीव दैट टू. एग्जैक्टली. ओके, सो यू मीन टू से अगर कोई भी ऐसा होता है तो उनको उनके आसपास के ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, और जो अच्छी बातें करता है, एंड दैट हेल्प यू टू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इवन व्हेन यू आर विद समबडी दैट मेक यू हैप्पी योर सेल्फ. that is called my self care, one of the part. Yes. Yeah, okay, interesting. Okay, चलो, मैंने नोटिस करा है, ओके, आई वुड टॉक अबाउट द डिप्रेशंस. ओके, मुझे पर्सनली लगता है जो लोग डिप्रेस होते हैं ना, दे नीड मोर सेल्फ केयर, बिकॉज समटाइम दे थॉट्स टू मच, ओके, ओवर थिंकिंग, एंड दे डोंट थिंक अबाउट देम सेल्फ, राइट. एंड दैट इज समवेयर हम देयर लाइफ, आई वुड से कैरियर में भी होती है. कैरियर में जहाँ पे जॉब जाते हो, यू विल रिएक्ट डिफरेंट, योर बॉडी विल बी रिएक्ट डिफरेंट. ऑल्सो आप किसी से बात करोगे, यू विल नॉट फील हैप्पी एंड यू विल फील. सो how will they can come out this? I mean, I'm talking about the depressions. It could be anything about family relationship. It could be anything. So what would be your thought about?
सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ना ये होता है कि आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाया या नहीं बनाया। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप कितना भी एक डिफ़िकल्ट फेज़ होगा आप उससे निकल पाएंगे ईजिली। आई एम नॉट सेइंग कि ईजिली अगर मैं बोल रही हूँ तो बहुत ही ईजी है, बट इट विल बी बेटर दैन कि आप जो ना बहुत ही ज़्यादा आपको साल, क्योंकि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है उसको सालों लगते हैं निकलने के लिए। आई वॉज तो उस केस में हेल्प क्या करते हैं? सेल्फ लव सी वहाँ पे ना हर एक बंदे के केस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई 2 सिनेरियो या 1 सिनेरियो आप बताओ। एक होता है कि आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है। हाँ, इंटरेस्टिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है। मम्मा या पापा किसी के साथ भी आप कितने खुले हो। अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो आप उनसे क्या अपनी बातें शेयर कर सकते हो। कैन यू शेयर योर थॉट्स कि यू नो मम्मा या पापा और वॉट एवर आप यू नो आई एम गोइंग थ्रू दिस, एंड यहाँ पे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे और टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। बिकॉज एट द एंड आपका जो भी चीज़ें होती हैं ना वो आपके फैमिली वाले ही आपको उन चीज़ों से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। या फिर जब आपका मेंटली हम बात करते हैं ना, डिप्रेशन अगर आगे बढ़ा तो आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डिप्रेशन के फेज़ में अगर यू नो आपके साथ कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं तो वो और भी चीज़ें क्रिएट कर सकता है। आपको एंग्जाइटी अटैक्स आ सकते हैं, आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो उन इंसान को पता होता है। सो हाउ द पर्सन कैन बी मेंटली फिट, लाइक जैसे मैंने एक मूवी देखा था डियर जिंदगी, द गर्ल इज लिविंग अ लाइफ, है ना। आई लव द मूवी। इंडिया में और भी ऐसे मूवी होना चाहिए। फॉर मी आई बिलीव ऐसे टाइप ऑफ मूवी बननी चाहिए क्योंकि पीपल शुड नो अबाउट दैट मेंटल हेल्थ, ओके, सेल्फ केयर, बिकॉज द पर्सन इज अलाइव बट something somewhere is going on in their head, okay, and they are not good, and sometimes just you need someone to talk about it, right? And वो थेरेपी में आपको मिल जाते हैं, आई थिंक, है ना। एंड आई थिंक वही चीज़ें रियलाइज़ कराते हैं सेल्फ केयर में, वो सारी चीज़ें कि जो अराउंड आपका है। इफ़ यू टॉक अबाउट आपको क्या रियलाइज़ करवाता है सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ लव के लिए, सबसे पहले तो ये है मुझे एक बार थोड़ा और ब्रीफ में बताओ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सेल्फ लव। सेल्फ लव इज लविंग योरसेल्फ, गिविंग टाइम टू योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग कि आप खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। लोग बहुत ज़्यादा ना अभी क्या हो गया है कि आई वुड से जनरेशन गैप, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पीपल आर नॉट वेरी अटैच्ड विद देयर लव्ड वंस। और लोगों के साथ एक ये भी हो गया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं चीज़ों को लेके कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। बट दैट्स ट्रू, आई गेस। या एग्जैक्टली, बट वहाँ पे ये होता है ना कि आप पहली बात सेल्फ लव की जब हम करते हैं, सबसे पहली बात कि आप अपने सोशल मीडियाज वगैरह जितने भी है वो नेम, बट आप ना उनका एक स्क्रीन टाइम सेट करो। कभी कभी जस्ट यू नो टेक योर टाइम ऑफ, रीड समथिंग गुड, लिसन टू समथिंग जिससे आपको खुद को अच्छा लगे, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स है। गो फॉर वॉक्स, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ यू नो आप कहीं और चीज़ें ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे मुझे क्या देख के मुझे अच्छा लग जाए। बट यू नो यू नीड टू लुक फॉर समथिंग जहाँ पे आपको खुद को अच्छा लगे। जब आप अपने साथ जब आप टाइम बिताते हो ना, तब आपको एक चीज़ और होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, राइट, आपको खुद को नहीं समझ में आता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। आप आप मेंटली आप कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो चीज़ों से। आप लोगों के साथ आप जो ना टाइम बिताना बंद कर देते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं, यू आर यूजिंग योर सोशल मीडिया, आपने अपना पूरा टाइम वहीं पे दे दिया, आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो। आप सोने के पहले भी फ़ोन चला रहे हो, उठते ही आपको फ़ोन चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं मेंटली आपको। सो आई थिंक उस हिसाब से एक बात बोला जाए कि
हमें कभी थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए फ़ोन एंड ऑल से, है ना, Yes. and just be quiet and spend time with only yourself. Okay, and normally nowadays this happening, okay, people started gymming and meditation because they doesn't know how to do the spend time with their own self, right? I think yeah, I understand because I personally मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, एंड समटाइम आई रियली डू. ओके, आई यूज टू डू अ लॉट. ओके, कभी कभी क्या होता था कि मैं रात को कहीं अकेले चला जाता था और एक जगह पे चुपचाप बैठे रहता था. आई जस्ट वॉच द लाइक आसमान या व्यू या कुछ रास्ते का व्यू देखता था. सो वो टाइम मेरे लिए अलग था बिकॉज शायद मैं अपने बारे में भी सोचता था, और दिस अ लॉट ऑफ थिंग एंड दैट्स मेक आई वुड से दैट्स ऑल ऑफ दिस हेल्प मी टू बी हियर टुडे. Okay, what I'm doing, and that is, I think, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है भी है. Exactly. And ये मैंने सुना ये बात शाहरुख खान ने भी बोला है कि शाहरुख खान also spend because he's personally I really like him. He's a nice guy. Okay, because the way he's represent in social media, the way he speak. Okay, and he also told that कि वो भी अकेला अपने टाइम स्पेंड करता है. Okay, फैमिली के साथ भी है, सब है, बट थोड़ा टाइम कभी ये होता है कि वो अकेले जाके बैठे रहते सो दैट दे कैन थिंक, ही कैन थिंक अबाउट इट. एक इंटरव्यू में मैंने देखा था. सो इट साउंड लाइक इंटरेस्टिंग. आई थिंक एवरीवन शुड बी स्पेंड टाइम दो देयर सेल्फ टू. इट्स इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, सो कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो को मेन जो आपको सेल्फ लाइफ के लिए ध्यान में रखते हो, अगर आपको जनरली लगता है कि यू नीड टू वर्क, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे ये जानना है. मैं ऑडियंस की तरफ से पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि सवाल हो कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जब मुझे लगे कि मुझे सेल्फ हेल्प की रिक्वायरमेंट है. पहली बात तो ये कि अगर आपको लग रहा है कि है, सेल्फ एनालाइज. ठीक है, सेल्फ एनालाइज आप जब करोगे ना, और ऐसे नहीं करना है कि हाँ मुझे लग रहा है सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, मैं अभी सोचूंगा. नहीं. ओके. Calm yourself down, have some water, sit quietly and then think. Interesting. जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट वो पकड़ नहीं पाएगा. Right. You need to calm yourself down, have some water, cold, warm, whatever you prefer. Sit quietly or listen to some music. Right. जो भी आपको हेल्प कर रहा है आपको काम करने के लिए. उसके बाद आप सोचो कि क्या है. हम लोगों को ये लगता है कि क्या है, बट यू डोंट नो द रूट कॉज ऑफ इट. राइट. यू नीड टू थिंक अबाउट इट, जिसको हम बोलते हैं ना सेल्फ एनालाइज करना. आप अपने ही सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ एनालाइज. फर्स्ट पॉइंट व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, देन यू नीड व्हाट इज रिक्वायर्ड. एग्जैक्टली. Point. Yeah, good. Okay, so apart from, you told me that you also do coaching on mental health as well. एक्चुअली मेंटल हेल्थ का आपको तब बहुत ज़्यादा समझ में आता है ना जब आप सेल्फ लव से दूर भाग गए, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे वो आपको मेंटली बहुत परेशान करता है. आप यू विल फील. सो ये ऑल कनेक्टेड है. इट इज इंटरकनेक्टेड. ओके. ठीक है. नाउ यू टेल मी शाहीन दैट आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो. आप सिर्फ काम 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 काम, ढंग से खाना पीना, किसी का होश नहीं आपको, आप बाहर नहीं जा रहे हो, किसी फ्रेंड से नहीं मिल रहे हो. सो एक टाइम के बाद ना, हाउ विल यू फील? Lonely. Okay, and then loneliness can be the headache. And that's called a mental issues. No, headache is not a mental issue, but उसके साथ जब आप सैड फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो ना, एक अलोन टाइम अलग होता है, एक लोनलीनेस अलग होती है. Two different things. They're two different things, and people just misjudge it. Yeah. कि मैं अकेले they feel sorry, go ahead. Like they are like मैं अकेले हूँ. नहीं, अलोन टाइम बताना वो होता है you are spending time with yourself. And you have the option, you can go out and do other things as well. But loneliness, you're feeling lonely, you feel that there's no one you can talk to or anything like that. Alone time spend karna apne sath is good, but loneliness is not. Okay, what I notice about right now,
all the generations, okay, all the generation having same issues, who's mostly are feeling lonely. So how we can get out of this? देखो, आपको लोनली कब फील होता है? जब आपके आसपास जो है ना, आपका लोगों से कनेक्ट नहीं है, आपने वो कनेक्शन ही नहीं बनाया है। आपका जो कनेक्शन होता है ना, सबसे पहला होता है आपके जो सबसे करीबी लोग हैं, विच आर योर पेरेंट्स। Right. पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है शाहीन। अगर मुझे अभी अगर बहुत बुरा फील हो रहा है, अगर मुझे अभी लोनली फील हो रहा है ना, आई कैन कॉल माई मदर एंड आई विल बी लाइक, माँ आई एम फीलिंग लोनली, या फिर मैं उनको ये नहीं बताऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी, बिकॉज मेरा वो कनेक्ट बना हुआ है। Right. अगर मेरे लाइफ से आज दोस्त चले भी जाएं, तो आई नो कि मेरा जो पर्सनल कनेक्शन मेरे माँ बाप के साथ है, मैं उनसे कभी भी कोई भी बात कर सकती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है। Exactly. I think this is the great things to do. और हर बच्चों को करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ फ्रेंडली रहना। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम, आई थिंक यू शुड हैव अ फ्रेंड्स, यू शुड बी कनेक्टेड विद अ फ्यू पीपल, ओके, एंड शुड बी लाइक अच्छे इंसान होना चाहिए, उनके साथ रहो। अगर ऐसा कुछ होगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, तो ऐसा बूढ़े इंसान के साथ रहोगे तो यू ऑटोमेटिकली बिकम ए देम। लाइक मैंने एक तो वो सुनी थी कहानी, मतलब किसी ने, जब मैं बचपन में ही सुनी थी। सो एक एग्जांपल दिया था किसी ने मुझे, कह रहा है एक था गिटारिस्ट, ओके, और उसका फ्रेंड सर्कल था, 4-5 फ्रेंड एक साथ बैठते थे, और एक लड़का था गिटार बजाते थे। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ इन माई पॉडकास्ट, ओके, और ये मेरा बचपन का, व्हेन आई वाज मे बी 7-8, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आई हर्ड फ्रॉम समवेयर। कह रहा है कि जो इफ़ेक्ट करता है ना आपके फ्रेंड्स का, वो बहुत करता है। तो वो क्या है कि वो 5 में से 4 लड़के होते थे सिगरेट पीते थे, ठीक है, और एक लड़का क्या होता था, वो नहीं पीता था, वो गिटार भी बजाता था, ठीक है। तो जब गिटार बजाते थे, वो गिटार में फोकस करके बहुत अच्छे से बजाते थे, ओके, शुरूली, और सब इंजॉय करते थे, ओके, मतलब साथ में जब होते थे कहीं पे, तो क्या वो उनके साथ वो फ्रेंड रहते उनके साथ फ्रेंड जोन में रहते एक दिन वो भी खुद स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके पास ऐसा हो गया उसके साथ कि जब वो सिगरेट पी रहे थे, मतलब वो सिगरेट पीने लगा, जब वो गिटार बजाते ना, गिटार बजाते एक हाथ पे लेके सिगरेट पीता था, मतलब बीच में एक गैप आ जाता है उसके टाइम, सिगरेट पीते पीते भी गिटार बजाता है, तो वो वाला सिचुएशन आ गया उसके पास। सो व्हाट आई फेल, आई स्टिल रिमेंबर ओनली द वन रीज़न दैट the around friends, because of the around friends affect his career and he was into different scenarios now, कि वो सिगरेट पीते पीते जो वो पहले जो फोकस कर पाते थे गिटार में, वो आज नहीं कर पा रहे, okay, because he needs something. तो आई थिंक दैट आई अंडरस्टूड कि आपकी अराउंड जो फ्रेंड्स है वो बहुत आपकी ज़िंदगी में वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी चीज़ पे। अगर उनकी सोच ऐसा है तो आपकी भी ऑटोमेटिकली यू बिकम ए लाइक दैम, ओके। सो आई वुड से बी केयरफुल हु यू स्पेंड टाइम विद, अदर वी आई वुड से अदर फ्रेंड्स, रिलेशनशिप के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, सो बी केयरफुल, नो द पर्सन देन द पॉइंट इज दैट चूज पीपल वाइजली। या आपको वाइब आती है जब आप जिन लोगों के आसपास रहते हो ना, देयर इज दिस वाइब यू विल रिसीव, आप उसको इग्नोर मत करो, ठीक है ना। कुछ कुछ लोगों से आप तुरंत मिलोगे, उनसे आपको ना शायद वाइब अच्छी नहीं है, राइट। कभी कभी मेरे साथ होता है, मैं बहुत बोलती हूँ, ओके, एंड कभी कभी क्या होता है, मीटिंग पीपल और मुझे वहाँ पे बात करने का मन नहीं होता है, यू नो, दे आर लाइक तुम क्यों नहीं बात कर रही हो, राइट, या फिर तुम चुप क्यों हो, तुम कम क्यों बोल रही हो, क्योंकि मुझे वो वाइब नहीं आ रही है सामने वाले से। अगर मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही है किसी से, आई बी हैप्पी टू कनेक्ट विद दैट पर्सन, क्योंकि आप जितने लोगों को जानते हो ना, उनसे कुछ ना कुछ आप सीखते हो, राइट। देयर इज दिस वन थिंग, एक आपका ना डिसिप्लिन होना आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काफ़ी लोगों का नहीं आता है। दे आर मल्टीपल रीजंस, राइट। जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद बाहर घूमने कभी भी फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, या फिर वो लेट नाइट स्टडीज़ कर रहे हैं। आजकल पीपल हु आर वर्किंग इन MNCs, उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, उनका कभी नाइट शिफ्ट हो गया, कभी डे शिफ्ट हो गया, कभी डे नाइट हो गया, तो उनका सोने वगैरह का भी कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, राइट। बट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द रीज़न आई एम सेइंग दिस, मेरे घर के बगल में ना एक दादाजी रहते, ओके। सो
ही वॉज इन आर्मी. Okay. मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है Hmm. कि जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन सिर्फ सुबह उठना रात में सोने वाली नहीं होती है. Hmm. डिसिप्लिन इज ऑल्सो लाइक आप कैसे लोगों के साथ में रहना पसंद करते हो, आपने वो बाउंड्री सेट करी है या नहीं करी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने किसको कितनी बाउंड्री में रखा है. Right. राइट. द वॉट यू ईट, Hmm. हाउ यू डू थिंग्स. Hmm. एंड डिसिप्लिन आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा आता है. जो लोग जिम जाते हैं ना, जो लोग एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का डिसिप्लिन हुआ. पीपल हु आर इनटू मार्शल आर्ट्स वो डिसिप्लिन बहुत फॉलो करते हैं. Right. आई बीन इनटू मार्शल आर्ट्स. मैंने कराटे सीखा हुआ है. आई एम अ ग्रीन बेल्ट. Okay. तो वहाँ पे मैंने डिसिप्लिन बहुत सीख लिया कि इस तरीके से चीज़ें करते हैं एंड आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है. लोग ये तो बात करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, बट क्या नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट एज वेल. Interesting. Yeah. बिकॉज वेन यू टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, हम ये बात करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर आपको लोगों से बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए जो आपके आसपास के, यू शुड चूज पीपल वाइजली. बट देयर इज वन मोर थिंग कि आपको क्या नहीं करना है. पहली बात, आपको टॉक्सिक जब इंसान लग रहा है कि आपको उसके आसपास टॉक्सिसिटी ये लग रही है. टॉक्सिसिटी जो होती है, व्हेन यू फील दैट दिस इज टॉक्सिक. सी क्या होता है ना कि आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है. ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हो. अब आपका जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो आप लोगों के ना बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है. बट धीरे धीरे करके एक ये होता है कि आप सामने वाले के लिए आप प्रोटेक्टिव हो, इसलिए पूछ रहे हो आप कहाँ जा रहे हो, आप घर टाइम पे आ जाओगे या नहीं. बट प्रोटेक्टिव होना, उसके बाद पॉजेसिव होना, फिर हो जाती है टॉक्सिसिटी. अगर आप एकदम ही बहुत ज़्यादा ऐसे करने लगते हो ना कि अभी तक बाहर क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, आपके सोशल मीडिया पे आपने इसे क्यों ऐड करा, द वे यू टॉक, Okay. Got राइट, it. द वे यू So टॉक. basically, toxic also, I would say the toxic word, it's come very recent time. Okay, it was not involved before. एक्चुअली हम मेंटल हेल्थ की भी अभी बात करते हैं ना, वर्ड तो बहुत रीसेंट है. Yeah. लेकिन ये है तो बहुत पहले से ही. है तो पहले, but है तो पहले it's से. involved in our मतलब जो अभी ये इसको कुछ ज़्यादा ही फेमस हुआ है, राइट. द सेम गोज टू द टॉक्सिक वर्ड, जो अभी लोग बातें कर रहे हैं कि टॉक्सिक. ओके, हो सकता है पहले हम इसको डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे. Exactly. हाँ, बट होते तो सेम चीज़. हाँ. सो आई माई पॉइंट ऑफ व्यू टॉक्सिक स्टार्टेड फ्रॉम, मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी रिलेशनशिप अगर होता है, ओके, चाहे कोई भी फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, इट कुड बी एनीवन, द फर्स्ट प्लेस यू शुड नो द पर्सन, कि जो आपके साथ जो बंदा या बंदी है, ओके, कि उनके साथ भरोसा करो. ओके, इफ़ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ओके, वो कंप्लीट आपके लिए गलत है. ओके, बट यू कान प्रोटेक्ट एनी बडी. द फैक्ट इज यू कान प्रोटेक्ट एनी वन. ओके, जिनको बुरा करना वो करेगा. एग्जैक्टली. ओके, सो बेटर, ओके, लेट देम व्हाट दे डू. अगर आप एक्सपेक्ट अच्छा करो, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड यू आर देयर फॉर दैट पर्सन, सो दैट दे विल रियलाइज दैट कि दिस पर्सन इज केयर फॉर मी, आई शुड बी देयर फॉर, राइट, अदर फैमिली, हस्बैंड. Or about the social media, because of the social media, obviously our expectation is different now. Sure. Okay, but also we have, I would say, because of the social media, its impact in our, like, I try to talk to somebody, okay, जो कि हमारी मतलब ऐसे फ्रेंड जोन में भी बात करता है, लोगों को गलत लगता है. बट या कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए एज अ पर्सन, एज अ कोई भी. ओके, हमें ध्यान रखना चाहिए सो दैट कि आर फेवरेट शुड नॉट बी गेट हर्ट, अदर माई मॉम, डैड, फैमिली, माई गर्लफ्रेंड. ओके, इट शुड बी एनी वन. ओके, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए. आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें पे ध्यान रखेंगे, हम ये टॉक्सिसिटी से बाहर आ सकते हैं. दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू टू से. There is one more thing, one or two more things. First, set your boundaries. Right? Do you think set boundaries is a good thing? Yes. Okay. Yes, it is. I believe in natural thing, like आप किसी के साथ हो, नेचुरली बात कर रहे हो, यू नेवर लाई टू द पर्सन वाई यू आर, व्हाट यू डू, लाइक चाहे आप मुझसे बात कर रहे हो, ओके, यू समवेयर हाइडिंग समथिंग, लाइक यू डिड समथिंग शिट, यू डिड समथिंग, लाइक
आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और तुम्हें लगता है कि उस बंदे को बुरा लगेगा और मैं नहीं बताऊंगा, ओके, और तुम नहीं बता रहे हो, उसके माइंड में एक वो ना क्रिएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, आपको बता दो कि दिस इज हैपन। सेटिंग बाउंड्री इज नॉट दैट, सेटिंग बाउंड्री इज वेरी डिफरेंट। ओके, आप हर एक रिलेशन में क्या होता है ना कि आपको अपने लाइफ का एक्सेस कितना देना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बिफोर। ओके, आई विल टेल यू वन थिंग, बिकॉज आज के टाइम पे क्या है ना कि आपने कुछ भी बताया अपने बारे में एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव, राइट? इफ यू आर टेलिंग दिस थिंग टू अ पर्सन whom you can trust blindly, but वैसे आपको लोग जल्दी नहीं मिलेंगे जिनके आप ऊपर ना आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो, Right. नहीं मिलेंगे। देयर आर थिंग्स अबाउट यू जिनका एक्सेस आपको पता है कि आपको किसको देना है। बट क्या होता है ना, हम लोग सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं आज किसी से मिली, Okay. मैं 10 दिन बाद भी उससे मैं टच में हूँ, बट मैं उसको हर बात अपने बारे में नहीं बताऊंगी, राइट? मैंने उस बंदे को या बंदी को वहीं तक का एक्सेस दिया अपने लाइफ का जहाँ तक मुझे कंफर्टेबल है। मुझे अगर नहीं पसंद कि कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में सामने वाला मुझसे बात करे, be polite, be like, I would like to just not touch this topic, at least for now, I'm not comfortable with it. Okay. लोग ये बोलने में ना लोग बहुत झिझकते हैं। अच्छा, okay, yeah. That saying no to someone, ये मैं जितने सेशंस लेती हूँ ना अपने क्लाइंट्स के, मैंने ये चीज़ ना बहुत कॉमन देखी है। दे आर लाइक, ना करने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमको, राइट? हम लोग अगर कोई मुझसे कोई हेल्प मांगता है तो मुझे वहाँ पे उसको मना करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। बट सामने वाला आपसे मदद मांगने आया, राइट? अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आप अपनी चीज़ों को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आपकी चीज़ें तो सफ़र नहीं हो रही, कहीं आप सफ़र तो नहीं हो रहे। हो सकता है किसी ने आपसे ऐसा फेवर मांग लिया जहाँ पे आपकी लाइफ, आपकी जो चीज़ें वो अफेक्ट होंगी। वाई वुड यू अफेक्ट योर लाइफ एंड योर मेंटल हेल्थ बिकॉज ऑफ समवन एल्स हु इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू? Point. You should understand that. Yes, being selfish and being important to yourself are two different things. But even if you're being selfish and it is not harming others, be that. Yeah. लोग मुझे बोलते हैं you are very selfish. Sometimes you become so selfish कि तुम अपने बारे में सोच रही हो। I think वो मैं एक बात बोलता हूँ कि when you say you don't care, okay, that means you care more about yourself. Not every time. Not every time, but yeah, most of the time. See, when you said to somebody, I don't care, like I said to somebody, I don't care. So that means I really don't care about whatever they happen, but I do care about myself at the same time, okay? Because that is care, that matter to me, कि I should not be care, okay? So that I would say as a self-care too. So few thing I would say, okay, few thing you should say that you don't care. Okay, like say selfish वाला जो connectivity, I think it's a similar thing, yeah. एक्चुअली जब आपने एक थोड़ी देर पहले अग्रेसिवनेस वाली बात बोली थी, राइट? पता है आजकल ना लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड है लोग, I know, राइट? काम की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, जिनके पास जॉब है वो जॉब में फ्रस्ट्रेटेड है, जिनके पास नहीं है उनको जॉब चाहिए उसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, एन नंबर ऑफ रीजंस, राइट? एंड ये अग्रेसिवनेस, पता है आप ये सोचो आप अग्रेसिव हो या फिर आप बाहर नहीं निकल रहे बट अंदर ही अंदर आप हो, राइट? आपको आके किसी ने बोल दिया कि पता है तुम्हारे बारे में ना XYZ इंसान ने कुछ तो बोला, आप फ्रस्ट्रेटेड यू विल बी लाइक कैसे बोल दिया ऐसे, राइट? लोग बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस हो चुके हैं आजकल। मेरे साथ भी पहले ऐसा था, मैं हो जाती थी, लाइक कैसे बोल दिया ना, आई एम लाइक जिसको जो बोलना है बोलने दो। आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, पीपल whom I love, who loves me, they know how I am. So you should not give your energy, your time to someone who is just saying things just like that, बोलने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं लोग, right? You should understand कि अगर मैंने यहाँ पे बोला मेरी टाइम जाएगी, मेरा एनर्जी जाएगा, क्या ये वर्थ इट है? क्योंकि जब आप गुस्से में आते हो ना उसके बाद ना फिर आपका सरदर्द कहीं ना कहीं होने लगता है, आपका मूड खराब हो जाता है, उसके बाद आपको जो काम करना है वो भी अफेक्ट होता है। एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड। आई नो, योर डेली लाइफ इज इंटरकनेक्टेड विद दैट। दैट्स व्हाई आई से व्हेनेवर यू वेक अप, बी काम and have some water,
अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू द होल डे, राइट मेक अ प्लान विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो ना करना बहुत ज़रूरी है. बहुत से लोग होते हैं जो बात शेयर नहीं कर पाते. पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और जस्ट टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली. क्योंकि लोग कहते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़, अच्छा या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं लाइफ में क्या करूं क्या नहीं करूं. राइट. लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं. जो होप होती है ना हमारी और जो फेथ होती है वो जब तक आपकी खुद के साथ नहीं है ना. अगर मुझसे कोई बोलता है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट होप, आई वुड से माई सेल्फ. मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू टॉक अबाउट दी सेल्फ केयर, दैट मीन्स ये भी होता है पीपल आर सर्वाइविंग सम वे, राइट. उनको रिक्वायरमेंट है ओके सेल्फ केयरिंग के. सो लोग इसके लिए अगर आप कोचिंग के लिए दैट पीपल नीड दैट. सो इसमें जेंडर वाइज कितने होते हैं, मेल ज़्यादा होता है फीमेल ज़्यादा होता है? ओके, मेरे पास अभी तक मैं अपना बता सकती हूँ. आई हैव एनकाउंटर्ड मेन मोर. Men's, that means men's are going through too much. It is not that only men are going through too much, women also, but मतलब compared to the number if you see compared to the number हो सकता है दूसरे जो कोचेज हैं उनके पास लड़कियां ज़्यादा जाती हैं, बट मैं अपने हिसाब से बता सकती हूँ. लड़कों के ऊपर क्या है ना, एक बहुत ही ना सोसाइटल प्रेशर है. राइट. कि बेटा अच्छे कॉलेज में जाना है, जब तक अच्छे कॉलेज में नहीं जाओगे आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, या फिर आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी. आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू सर्वाइव. तो लड़कों की लाइफ जितना मैंने देखा है ना, वो प्रेशर बहुत रहता है. कि अगर अभी किसी लड़के की मान लो एक पर्टिकुलर एन नंबर ऑफ की LPA की आपकी जॉब है, ठीक है. अब आपकी जॉब लग गई है, यू आर अराउंड 28-29. घर वाले बोलने लगेंगे बेटा जॉब देखो, अच्छे से सेटल हो जाओ, आपकी शादी भी करनी है. उसके बाद क्या होता है, आपके ऊपर शादी का भी प्रेशर आ रहा है. फिर उसके बाद आपका ये होगा कि अब शादी के बाद यू विल स्टार्ट अ फैमिली, आपके ऊपर उसका भी प्रेशर आ रहा है. आपकी जो इनकम है आपके दिमाग में वो भी चलती रहती है, या फिर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जो मेरे को समझ में आ रहा है, या फिर एक लड़का है उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं. लड़के रो नहीं सकते, ये एक टैबू है, ये एक सोशल टैबू है इन सोसाइटी कि अगर आप रो रहे हो यू आर नॉट मैन इनफ. I think men also cry, but they are not cry for everyone. Exactly. Always, all men are also crying, but they are not crying everyone. Either by male fan or female one or family. They also cry somewhere on their head. They also cry when they are alone sometimes, because there's so many people. Men are going through so many things about families, jobs. Okay, job में problems. Okay, बहुत सारी चीज़ें में that I felt कि ऐसा होता है. ओके मैंने देखा भी है ऐसे कि लोगों को ऐसे जाते हैं, बट उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है क्योंकि नो वन सपोर्ट हिम बिकॉज ही इज़ ए मैन. शाइन पता है क्या होता है कि आप अपने आप को कितना खुला रख पा रहे हो लोगों के सामने. ठीक है, अरे ऐसे बोलते हैं ना कि अरे वाई आर यू सैड, यू नो तुम तो लड़के हो, तुमको क्या ही बहुत ज्यादा ये बोलते चल बे है, ये सब कुछ नहीं होता है. एग्जैक्टली. बट द फैक्ट इज ओके द पर्सन इज गोइंग थ्रू ऑन देयर हेड, और वो वही समझता है. ओके तो आई थिंक वहाँ उस टाइम ऐसे नहीं बोल के मेक देम फील कि इट विल बी ऑल राइट. देखो ये कौन करेगा आप बताओ. ऑब्वियसली द पर्सन लाइक फ्रेंड whoever they are with. But for that Shaheen, you need to make that connection with your friend. Yeah. आपको इमोशनल लेवल से भी उस इंसान से जुड़ना पड़ेगा. इमोशनली बॉन्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. Whether it is a man or a woman, whether it is a child or a teenager, whether it is a person who is of old age. ठीक है, इमोशनली कनेक्ट करना एटलीस्ट किसी एक इंसान से. वो कोई भी हो सकता है, वो आपका सिबलिंग हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो अगर आप कोई थेरेपी ले रहे हो आपका थेरेपिस्ट हो, तो उससे तो मत ही करो आप, क्योंकि वो दैट इज इसमें कौन से पार्ट में ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलता है? आई थिंक फ्रेंड और फैमिली. अगर कोई depend how you connected with the family or how you are connected with your family, plus
आप किस तरीके से आप बात करना चाहते हो, बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स जो शायद आप अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाओगे, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो शायद अपने फ्रेंड से नहीं बात कर पाओगे, राइट? बहुत सारी चीजें आई थिंक होती फ्रेंड हैं। के साथ हम हर की चीज़ शेयर करते हैं अबाउट फैमिलीज की, भाई भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है अभी, और बट फैमिली वाली बात पे ऑब्वियसली कभी कभी हम ऐसे शेयर नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट एग्रीड और दे फील अनहैप्पी अबाउट व्हाट गोइंग ऑन इन माई लाइफ। रीजन है शाहीन इसका, जो जनरेशनल गैप है ना, या वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मेरे माँ बाप आज अगर मेरे से फ्रेंडली है ना, कुडोस टू देम, बिकॉज वो जिस जनरेशन में पले बड़े हुए हैं उस टाइम की जो चीज़ें थी वो आज से बहुत डिफरेंट है। कल को हमारी जो आगे की जनरेशन आएगी उनका सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी में बहुत डिफरेंस होगा। एग्जैक्टली। आप कभी भी ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ ये चल रहा है, सोसाइटी में ये चल रहा है, लाइफ में ये चल रहा है, मेरे पेरेंट्स जो है ना समझ नहीं रहे, वो नहीं समझेंगे, बिकॉज वो जिस जनरेशन से आ रहे हैं, वो जिस टाइम से आ रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। Right. वहाँ उस टाइम का कल्चर बहुत अलग था। अभी हम इवॉल्व हो गए, आने वाली जनरेशन और इवॉल्व इन्वायरमेंट में रहने वाली, वो शायद हम नहीं समझ पाएंगे। तो जो वो फील करेंगे हमारे लिए, वही शायद आज हम फील कर रहे हैं उनके लिए। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप लड़ो मत अपने पेरेंट्स से इन सब चीज़ों के ऊपर। लोग लड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके जो बॉन्ड होता है ना आपके पेरेंट्स से, वो बहुत अफेक्ट होता है। अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको थोड़ा भी समझ रहे हैं ना, इस जनरेशन में रह के आपकी जनरेशन को अगर वो समझ रहे हैं, इट इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज वो उनके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा एक बात बताओ, वी टॉक अबाउट द जो मेंस प्रॉब्लम को आपने बोला कि आपके पास ज़्यादा आया, सो मतलब ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोगों को मतलब दे आर रियली फेल टू टेक सेशंस? हाँ, देखो सबसे बड़ा एक तो मैंने देखा है करियर, एक है उनके रिलेशनशिप्स। मैं आपको ना उंगलियों पे गिना सकती हूँ जो सबसे ज़्यादा मेरे पास लोग आए हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं। एक है उनका करियर, ओके, ठीक है, जो अभी 12th करके स्कूल से निकले उनको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, उनको भी प्रॉब्लम, उनको ये नहीं समझ में आया कि उनको करना क्या है। दे आर नॉट इवन श्योर कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, राइट? सेकेंड, आपके relationships. When I'm talking about relationships, not only romantic relationships. Do you think relationships is really important in life to grow? देखो अब ये डिपेंड करता है आप कौन से रिलेशन की I mean relationship is a romantic relationships. See, if क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, people get confused sometimes. I had a word with one of my hometown guy, I would say लड़का, तो उससे मैंने बात करा ना, but I realized one thing, okay, he's completely feel alone because no one is there for him, okay, and he want to be with someone. This is sound crazy that, okay, मैंने बोला कि भाई जिसको आना है वो आ जाएगा, बी क्वाइट, बी योर सेल्फ, ओके, धीरे धीरे तू अपना काम पे फोकस को जो करना है, एंड whoever come to your life it will be, okay, people will be see you that you are doing something, people will be appreciate you and people will be love you. मैंने इसको ये बोला, एंड ही इज़ डूइंग, ओके, राइट नाउ ही इज़ वर्किंग, मतलब बिजनेस प्लान में ही लगे हुए हैं, बाकी वो उसको पता है कि उसके लाइफ में चलेगा क्या। बट आई फील ऐसे ना, मैंने एक पर्सन से बात करा दैट आई फील, बट ऐसे हर चीज़ होता है अभी जनरेशन वाइज, लोगों को माइंड में ऐसे आते हैं, दैट आई एग्री। सो या गो अहेड विथ योर व्हाट यू आर सेइंग, व्यूज ऑन रिलेशनशिप्स। या सी आई वुड से कि इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, नेसेसिटी आपकी नहीं है एक रिलेशनशिप में आना। आप रिलेशनशिप में आओ जब यू फील दैट यू आर रेडी एंड यू हैव अ पर्सन जिसके साथ ना आप रह सकते हो एक रिलेशन में, जिसके साथ आप इमोशनली आप कनेक्ट हो सकते हो, जिसके साथ आप मेंटली जो भी चीज़ें हैं वो आप बता सकते हो, जिसके साथ आप ना हर एक चीज़ शेयर कर सकते हो, जिसके सामने यू कैन बी योर सेल्फ, या राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्या है ना, पीपल आर इनटू कैजुअल रिलेशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है, देयर चॉइस, बट अगर आप वहाँ पे इमोशनली अटैच हो गए और वो सामने वाला नहीं है, एंड इफ यू नो दिस थिंग एंड देन ऑल्सो यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट विल अफेक्ट यू। ओके, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया इसमें अबाउट द कैजुअल रिलेशनशिप। अगर कोई स्पेशली गर्ल्स, ओके, I would say the boys too, okay, but the girl is a top and the
So, if any girl into multiple relationship, okay, like more than 3, तो do you think उनके mental state different हो जाता है after certain time? I would say Because right now I also see those kind of things in people जो ऐसे मल्टीपल बॉयफ्रेंड जो बनाते हैं, उसके बाद उन एक पर्टिकुलर इंसान से कंपेयर करते हैं कि एक दूसरे से कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव द फर्स्ट वन इज़ बेटर फॉर मी विच इज़ नॉट नाउ, वो नहीं है अभी. एंड द सेकंड वन, कभी कभी सेकंड वन से कंपेयर करते हैं प्रेजेंट वाला, ये अच्छा नहीं है. फिर वो अपने माइंड में अपने लाइफ पे वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाते हैं. सो आई बिट से जो ऐसे लोग हो, ऐसे मल्टीपल पार्टनर जो बनाते हैं ना, unfortunately they will compare to the each another person and they will not happy eventually शायद. एंड फिर आफ्टर 30 के बाद वो लोग क्या करते हैं, जब वो खुश नहीं होते ना, फिर बोलते जो मिल जाए आप, मुझे लाइफ जीनी है. ओके, मैं तो ये बोलूँगा फॉर एवरीवन, रिलेशनशिप में एक में रहने की कोशिश करो. ओके, दैट वुड बी गुड. यू शुड गिव द होल your emotions, okay, and support there for that person. ओके, मेक देम डू ग्रो. अगर एक लड़का हो तो आप उस लड़की को अगर कुछ करना चाहते हैं, सपोर्ट हर टू ग्रो. ओके, बट बी देयर फॉर द पर्सन. एंड द सेम गोज टू द गर्ल्स टू. ओके, you can make the person with the company CEO, you can make the person as a businessman too, if you're there for the person with the right way. हाँ, situation wise, like family situation wise, financial situation wise can be happen, but you need to have a right idea to grow. So ये चीज़ आई पर्सनल फील, तो इसलिए आई विल नॉट एग्री विद द कैजुअल रिलेशनशिप विच इज़ हैपनिंग. उनकी लाइफ में एक अलग सिनेरियो आता ही है. ये आई फील दैट. Because see, even when you're in a serious relationship, right? बात ये होती है ना कि आपकी जो स्टार्टिंग में चीज़ें हुई हैं, आप जैसे हो एक दूसरे के साथ, right? You need to take your time, right? Understand each other. Don't rush. ठीक है ना? Don't rush. Yeah. And give time. Plus communication is very important. Yeah. लोग ना communicate करने में ना बहुत झिझकते हैं, especially boys. उनके साथ पता है क्या है, उनको ना open up होने में थोड़ा सा ना रहता है कि अगर मैंने ये साइड दिखाई, क्या सामने वाला मुझे कैसे सोचेगा मेरे बारे में, या फिर जज करेगा. लड़कों में ये एक चीज़ ना मैंने देखी है, जितने लोगों से मैं मिली उनमें मोस्टली मैंने लोगों में ये चीज़ देखी. प्लस जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, डोंट कंपेयर. एग्जैक्टली, डोंट कंपेयर, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग, ऑलवेज रिमेंबर, आप जिससे कंपेयर कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में नहीं है. अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है, देयर मस्ट बी अ रीजन कि वो आपकी लाइफ में नहीं है. ही शुड अंडरस्टैंड दैट. राइट. अगर मेरा जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, अभी मेरा एक करंट बॉयफ्रेंड है, लेट्स टेक दिस सिनेरियो. एक मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, ठीक है, मैं उसके साथ नहीं हूँ. अभी जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है, समथिंग हैपेंड एंड हम लोग की कुछ तो लड़ाई हो गई किसी बात पे. एंड मैं बोल रही हूँ, हाँ, जो मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था वो तो अच्छा था. मैं बोलते नहीं है, बट पीपल आर फील, people say and even if you are thinking, right, you need to understand that if you're thinking about it, कि जो आपका प्रीवियस पार्टनर था वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा था, अभी क्यों नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ तो रीज़न होगा. अदरवाइज यू डोंट लेट the right person go. You will just give everything to the relationship. And बात ये होती है ना कि जब आपको लग रहा है ना कि this is the one, you will give your everything to this relationship, to this person, emotionally, mentally, everything. Right. आप जितना हो सकेगा ना, आप एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है ना, आप वो कर देते हो एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए. लेकिन आप सोच लो, अगर तभी भी अगर आप वो बंदा नहीं है या वो बंदी नहीं है, रीजन तो होगा ना. तो थिंक अबाउट दैट रीजन एंड थिंक अबाउट द रीजन व्हाई यू आर विद दिस पर्सन. डू यू रियली लव दिस पर्सन और यू आर जस्ट विद हिम और हर बिकॉज ऑफ द अफेक्शन और द केयर? बिकॉज अफेक्शन लाइक लव बहुत डिफरेंट होता है, राइट? आप ये पहले सोचो कि आप इसके साथ हो, डू यू फील गुड, डू यू फील सेफ. सेफ फील करना एक इंसान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट. डू यू फील सिक्योर, डू यू फील योर सेल्फ, डू यू फील दैट इफ देयर इज एनीथिंग कैन आई कॉल दिस पर्सन एनी टाइम एनी वेयर. इफ येस,
give some time, understand each other, Yeah. what they want in their life, what you want in your life, communicate कि दोनों के expectations क्या है एक दूसरे से. अभी के टाइम में ना ये टॉपिक ऑब्वियसली डिफरेंट हो रहा है, ओके, बट आई वुड से दैट डजंट मैटर, ओके, ओके. सी अभी के टाइम में ना व्हाट आई सी, ओके, कोई भी रिलेशन स्टार्ट होता है दैट अगर वो रिलेशनशिप है तो द फिजिकल प्रेजेंटली, ओके, दैन कंसिडर्ड इज अ रिलेशनशिप अदर देन कि हाँ वो रिलेशनशिप में मेरा दोस्त है. दिस इज हैपनिंग विद द There नाउ are a lot जनरेशन. of fancy terms Yeah. right now, you know, situationship Yeah. and blah blah. Those things should not be happen, but anyways हो रहा है. एंड आई थिंक ये जनरेशन बाइस के कारण है और स्पेशली सोशल मीडिया की एक रीज़न भी हो सकता है. बट ठीक है, जैसा भी है, दिस इज अप टू द पीपल. एनीवेज दिस इज द डिफरेंट पार्ट, ओके, विल Yeah. टॉक अबाउट सम अदर. सो फॉर नाउ आई ऑल्सो वांट टू नो वन मोर थिंग, ओके, about the men's having problems about not only the mental health, apart from what you see the different kind of they are facing problem. See, as I told you starting me that I'm associated with NGOs. Okay. One is called Ekam Nyay Mhm. Foundation, where we are basically the founder. Her name is Deepika Narayan Bharadwaj. Okay. She's an equal rights activist. Okay. And I'm happy that I'm a part of her team anyway. Is that I heard that from I think वो राशा मानी के पॉडकास्ट में भी गया था. Yes. Okay. She I heard talked about that. dating मैंने app सुना scams है, over there. स्कैम एंड ऑल सुना है मैंने. Yeah. वो पूरा पॉडकास्ट सुना है. So वहाँ पे क्या है ना, she talks about men's right a lot. Okay. एंड जो मैंने उनके साथ रह के भी चीज़ें देखी हैं, बिकॉज मैं NGO से एसोसिएटेड लास्ट 5 years से हूँ. Okay. In 2019-2020 I was associated with one NGO. I won't name it, but because there were reasons I had to leave. But वहाँ पे we were working against rape and false rape allegations. Okay. ठीक है, and trigger warning So if men are get anyone have misused. this trigger. I just want to say that if anyone have this trigger of this particular word, then please just think about your mental health first before. Okay. So continuing what this. kind of मतलब कैसे वो दे उसको समझ पाएगा कि सर क्या चीज़ें हो रहा है. या यू टॉकिंग अबाउट एब्यूज. आपने कहीं पे अगर आप कभी पढ़ोगे ना इंटरनेट वगैरह पे, जो रेशियो है ना वो बहुत वैरी करता है. जो एक्चुअल केसेस होते हैं और जो फॉल्स केसेस होते हैं, स्पेशली रेप के या फिर हरासमेंट के, जो लड़कियां कोई केस है file तुम्हारे करती पास हैं. ऐसा जो तुमने सुना है कि बहुत डिफिकल्ट लाइक मैंने सुना है, आई कांट नेम नहीं, जस्ट टेल मी द स्टोरी एज अ ह्यूमन. वहाँ पे क्या हुआ था कि द गर्ल फॉल्सली अक्यूज्ड ओके. अ गाय कि यू नो उसने ही harassed her sexually. He harassed her sexually. Okay. And फिर केस वगैरह चला, फिर काफ़ी साल लग जाते हैं. एंड आप बीइंग अ गाय, जस्ट इमेजिन कि एक रैंडम लड़की या फिर अ गर्ल यू नो वो आके आपको बोल रही है यू harassed her sexually एंड ऑल, आपके ऊपर पुलिस केस हो गया. अब ये बात जाएगी आपके घर पे, राइट? फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी हर एक जगह पे. यहाँ पे उसके बाद ना लोग बात करते हैं कि यू नो लड़कियों के बारे में, राइट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस राइट्स इन दिस सेंस, थिंक अबाउट द वुमेन रिलेटेड टू दिस पर्सन जिसके ऊपर हुआ है, राइट? अगर उसका कोई छोटा भाई बहन है, वो अगर कॉलेज या स्कूल जाता होगा, वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत सुनाया जाता होगा. अगर उसके घर वाले बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे बोलेंगे कि भाई इसके बच्चे ने तो ऐसा कर दिया. वो लोग भी हरास हो रहे हैं इसकी वजह से. एक ये भी तो पॉइंट देखो. उसका स्टैंड कौन ले रहा है अभी? कोई सपोर्ट कर, आप लोग ले रहे हो आपकी? Yes, I would like to give credit to Deepika Narayan Bharadwaj. Okay. Because from last 12 years, she's doing a lot for men. Interesting. There are not a lot of people who are talking about men. Yeah. And लोगों को क्या लगता है ना कि लड़कों के पास सब कुछ तो है, रात में कभी भी निकल सकते हैं, या फिर यू नो कुछ भी करना हो कर सकते हैं.
यू नो उनके ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, दे डोंट सी द बाउंडेशंस, क्योंकि वो दिख नहीं रही है। लड़कियों की जो बाउंडेशंस है ना, लड़कियों की भी बाउंडेशंस हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपको दिख रही हैं, राइट। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप रोड पे जा रहे हो, एक लड़की ने आपको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, गलती से हाथ टच हो गया, फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, people will be like, yes, this is a brave girl, you know, brave woman. But just imagine उसने आपको जो है ना गलत थप्पड़ मारा है, आपने उसको पलट के एक चांटा मार दिया, what will people say? वो नहीं सुनेंगे कि you know लड़की ने फालतू में आपको थप्पड़ मारा है, या फिर you know that was not right, नहीं Right, सुनेंगे। yeah. लोग बोलेंगे तुमने लड़के होके लड़की को थप्पड़ कैसे क्यों मारा? मारा? हाँ. And then these same people talk about gender equality. This is the big sham. Yeah. Because what I believe, being a girl, I would say, equality नहीं हो सकती, companionship होती है एक लड़के और लड़की में। Right. Right. Because see, हर जगह पे ना आपके अलग होती हैं चीज़ें, अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अलग आपके यू नो कंसेप्ट हो सकते हैं हर एक चीज़ के, बट आपको ये समझना चाहिए कि लड़का और लड़की दे आर बिल्ट डिफरेंट बायोलॉजिकली एज वेल, Right. मेंटली एज वेल, राइट। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इसीलिए ना आजकल आप देख लो कहीं पे भी अगर कुछ होता है सोशल मीडिया पे आप देख लो, boys are frustrated because of this when girls are talking about equality and they are like, you know, हमें तो अलग से लाइन चाहिए खड़े होने के लिए, कहीं पे भी काउंट होना चाहिए, लड़कियों का अलग काउंट होना चाहिए। If you want the equality, why do you want that? Right. Talk about the companionship, right? आप और आपका जो पार्टनर है, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैसे लोगों के साथ? Like जो aggressively, हाँ, especially the female one to abuse the male. What I believe, there's no specific law जहाँ पे अगर लड़की ने फॉल्सली अक्यूज्ड करा है किसी लड़के को इन सब चीज़ों के लिए, आई बिलीव कि उन लड़कियों के अगेंस्ट एक निकलना चाहिए लॉ, या फिर एक कुछ रूल होना चाहिए, ताकि जो एक्चुअली जिन लड़कियों के साथ हो रहा है ना ये सब, उन लोगों को थोड़ा सा कम हार्म हो, क्योंकि इन लोगों की वजह से उन लड़कियों को ज़्यादा हार्म होता है जिनके एक्चुअल जेन्युइन केसेस हैं, राइट। बिकॉज चीज़ें तो हो रही है सोसाइटी में। अब जब आपको अगर कुछ सुनाई दे रहा है कि ऐसा हुआ है, राइट, यू डोंट नो कि एक्चुअली हुआ है या नहीं हुआ, यू आर 50-50, बट नाउ अ डेज यू आर लाइक 70-30, ये नहीं हुआ होगा 70%, हुआ होगा 30%, राइट। तो अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है और वो अगर सामने इन सब चीज़ों को देख के वो इंसान सामने नहीं आना चाहता, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू मेंटली अ लॉट, राइट। वो मेंटली ऑलरेडी चीज़ों को लेके ना सोच रहे कि व्हाट शुड आई डू, इट हैपेंड, वो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा लो है, तो दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो अगर उन लड़कियों को अगर कोई सज़ा होने का प्रावधान हो जाएगा हमारे लॉज के अंडर, तो शायद जो जेन्युइन केसेस हैं वो ज़्यादा ऊपर आ पाएंगे, वो ज़्यादा सॉल्व हो पाएंगे, और ये फॉल्स केसेस के चांसेस कम हो जाएंगे। आई एग्री। आई थिंक मुझे लगता है ना ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन में जो होता है ना, इट्स बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन, आई फेल ओके समवेयर। मतलब अगर आपकी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, कनेक्शंस है, ओके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो कोई भी चीज़ करने से पहले सोचेंगे। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ें में जो एब्यूज़ टाइप ऑफ चीज़ें यूज़ करता है, चाहे मेल हो फीमेल, दे आर सेपरेट टू द फैमिली, मोस्ट ऑफ पीपल, ओके। मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट कुड बी। घर का माहौल एक, दूसरा फ्रेंड सर्कल, वो माहौल बहुत, क्योंकि अगर आपका घर का माहौल, कुछ लोगों के घर का माहौल ना बहुत अब्यूजिव होता है, ठीक है, वो मान लो एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका लड़का है, हस्बैंड इज वेरी अब्यूजिव टुवर्ड्स हिज टुवर्ड्स हिज किड्स मदर, ठीक है ना, कि भाई पापा हैं वो तो मार रहे हैं। इस चीज़ में दो चीज़ें होती हैं, या तो वो यही सीखेगा कि दिस इज ओके टू डू, यू कैन बी अब्यूजिव, या तो उसको ये समझ में आएगा कि दिस इज नॉट राइट एंड आई शुडंट डू दिस थिंग, राइट।
कि मेरे आसपास के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। राइट। बट हमारा ह्यूमन माइंड पता है कैसा है, वो ना नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। टिल द टाइम यू आर नॉट वेरी कनेक्टेड टू योर फैमिली एंड एवरीथिंग, आपको ना उतना समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी मेच्योर, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेच्योर, इट्स नॉट अबाउट द एज, it's about how you think, how you perceive things. So how can person मतलब make their self क्या मैं positive, कि they believe that they are positive, और अगर नहीं है तो वो उसको कैसे वो अपने आप को वहाँ तक ले आ पाए? देखो, पॉजिटिव होना अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होता है। Tell me the few things so that our audience should be. I'm just want to know that few thing. Obviously there is a category. Okay, if you follow. So you become a positive automatically. देखो, पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आना का जो तरीका है ना, हर एक इंसान का अलग अलग होता है। Right. There are people who are spiritual, right? जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो क्या करते हैं, they'll start listening to some mantras or chants, जिनको सुन के उनको शांति मिल रही है, जो जिनको सुन के ना थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं तो कम से कम आप न्यूट्रल ग्राउंड्स पे आ रहे हैं। राइट। सेकेंड, इफ यू लाइक समथिंग, कि कुछ एक चीज़ है जो करके आपको अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं दे राइट, है ना, कुछ लोगों को ना जो भी चल रहा है दे राइट इट डाउन, दे फील थोड़ा सा हल्का। कुछ लोग होते हैं जो शेयर करने में बिलीव रखते हैं, वो शेयर करके उनको हल्का लग रहा है, उनको थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। बट ये तरीका आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। It depends on the scale of negativity inside me, कि मुझे वो चीज़ें कैसे निकालनी है, या फिर depends on the event or the reason of my negativity. अगर ऐसा कुछ है जो मैं अपने मम्मा पापा से शेयर कर सकती हूँ, अपने मम्मा से आई विल टॉक टू हर। और एक चीज़ है, मम्मी से जो कंफर्ट मिलता है वो कंफर्ट आपको कोई नहीं दे सकता। True. वो कंफर्ट आपको कोई नहीं दे सकता। एंड अगर आपकी अपनी माँ से बॉन्डिंग है, ट्राई करो। दिस वन थिंग आई वुड लाइक टू कन्वे टू द ऑडियंस, कि अगर आपकी बॉन्डिंग अपने माँ से है उसे और अच्छी करो, अगर नहीं है तो अच्छी ट्राई टू डू इट। ठीक है, आप ये मत सोचो कि वो करेंगी, वो क्यों करेंगी पे, उन्होंने इस दुनिया में आपको ले आया, उन्होंने बी ग्रेटफुल, राइट। उन्होंने, आप अगर हो यहाँ पे, एंड बहुत से लोग होते हैं ना जो अपने माँ बाप के लिए बोलते कि यार वो लोग नहीं समझते, यार ऐसा नहीं होता, यार वैसा नहीं होता। क्यों? आप अगर यहाँ पे हो आज, अगर उनको इतनी प्रॉब्लम होती ना वो आपको अच्छे से पढ़ाते लिखाते, ना वो आपको इस काबिल बनाते कि आप यहाँ पे रहो। बिल्कुल। आप इतना बोल पाओ, वो आपको इस काबिल भी नहीं बनाते। बट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, राइट। एक तो ये तरीका है। दूसरा मेरा एक तरीका है कि मुझे अगर थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है, किसी चीज़ से मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ, आई लिसन टू सम मंत्रास। हाई पावर मंत्रास होते हैं वो, बट मुझे वो सुन के मुझे बहुत शांति मिलती है। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट फील अशेम्ड of accepting the fact that I was diagnosed with depression and anxiety. I was diagnosed with bipolar as well. But you need to understand how to keep yourself calm. Yeah. And these things helps you a lot. I used to write. Okay. When I used to feel like कि हाँ मुझे कुछ तो करना है, मुझे कोई नहीं मिल रहा है शेयर करने के लिए, I'll write it down. I'll start recording myself. I'll do that. अब तो लोग लिखना छोड़ दिया है ऑलमोस्ट, देखा जाए तो। नाउ पीपल आर लव टू वॉच लिटिल स्टोरी बाय द रील शॉर्ट्स, ओके, पर लिखते कम है। अब मुझे लगता है लिखना चाहिए। ये देखो, कोई लिख रहा है तभी तो आप वो सुन रहे हो, तभी तो वो आप पढ़ रहे हो। कोई ना कोई तो लिख ही रहा है ना, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। इफ यू लाइक इट, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है। आई मीन आई एम टॉकिंग विद एवरीवन। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग लिखते थे क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं थे, ओके। आप लोग सुनते हैं। एक चीज़ और है, बीइंग ग्रेटफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो है
उसके लिए आप ग्रेटफुल जब तक नहीं हो ना, आप खुश नहीं हो सकते हो. Right. सी आपकी जो नीड्स हैं, आपके जो वांट्स हैं, आपकी जो नीड है, आप सबसे पहले वो देखो वो फुलफिल हो रही है या नहीं है. Right. क्योंकि आज अगर आपके पास 1.5 लाख का भी फोन है और आपको फोन पसंद है, तो आपको जो नया मॉडल आएगा आपको वो भी चाहिए होगा. Exactly. राइट. दिस इज व्हाट यू वांट, बट यू नीड इज अ फोन. Yes. राइट. कौन सा फोन नहीं, उसमें Phone. कौन से स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए, दिस इज योर नीड. Yes. बट कौन से फोन का चाहिए, कौन से ब्रांड का चाहिए, इट इज योर वांट. उसी तरीके से आपको रहने के लिए घर चाहिए. राइट. अगर आप अकेले रह रहे हो, एक रूम, एक किचन, एक वॉशरूम इज व्हाट यू नीड. Right. बट हैव अ बिग हाउस इज व्हाट यू वांट. एंड उसके लिए क्या है ना, वर्क ऑन Yeah. एंड देन गेट इट. लोग आजकल अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मैंने बच्चों को देखा है, दे आर इन स्कूल एंड दे आर लाइक, मम्मी पापा मुझे तो आईफोन चाहिए, मुझे मेरे बर्थडे के लिए आईफोन चाहिए, मेरे क्लास में बच्चे हैं उनके पास आईफोन है. जस्ट सी कि क्या आपके पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू वांट. Yeah. बट मैंने ना एक रिसेंट में एक रील देखी थी. वहाँ पे ना एक लेडी थी जो फूल बेचती थी. उसके बेटे ने 2 दिन तक भूखा रहा है सिर्फ इस जिद में कि उसको आईफोन चाहिए. I think ये न्यूज़ में भी आया था. हाँ, उसको आईफोन चाहिए. उस लेडी ने किस तरीके से पैसे इकट्ठे करे होंगे उस 1 लाख के आईफोन के लिए. Right. राइट. जो बंदी अपने बेटे को भी पाल रही है, फूल बेच रही है सुबह शाम बैठ के. So this is like a crazy sound. I mean, हाँ, मतलब लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं. सो यू नीड टू बी ग्रेटफुल. whatever you have. यस. अगर आपको देखना है कि आपको ग्रेटफुल, अगर आप, अब मैं क्यों फील करूँ ग्रेटफुल, मेरे पास तो ये, सामने वाले के पास ये. अगर आपको कभी भी ग्रेटफुल फील करना है ना, ऑलवेज गो टू द पर्सन जो आपसे आई वुड से फिनेंशियली थोड़ा सा कम हो. मैं NGOs के साथ हूँ. मैंने कोविड के टाइम पे लोगों को देखा हुआ है. लोग पैदल, मैं जयपुर में थी, मैं जिस NGO के साथ पहले थी, हम लोग ने खाना, सैनिटरी नैपकिन्स और मास्क वगैरह, पानी की बॉटल्स वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. हमने देखा है, हमारी पूरी टीम ने देखा है कि किस तरीके से लोग पैदल जा रहे हैं. उनके पास शायद चप्पल भी नहीं है ठीक से पहन के जाने को, धूप है क्योंकि गर्मी का टाइम था. राइट. पानी नहीं है उनके पास ठीक से, क्योंकि आगे कहीं पे अगर कोई, इफ समवन विल लेट देम टू फिल देयर बॉटल, वो तभी पानी भर पाएंगे. वो 20 रुपए की बॉटल नहीं अफोर्ड कर सकते. राइट. वो नहीं कर सकते. उनको देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पास रहने को जगह है, मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं, मैं कुछ भी इस टाइम पे कर सकती हूँ. लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल जो बाहर हैं, जो अपने घर से इतने दूर आके रह रहे हैं. I do understand. खाना नहीं है उनके So पास. you should, I would, हाँ. तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, you have whatever you have, you should proud of it. Yes, क्योंकि जो आपके पास है वो शायद किसी के पास नहीं भी है. Okay, all right, yeah. I think ऐसे सोच सबको रखना चाहिए. एंड जो भी है, आपको अपनी ज़िंदगी में उसको उस मोमेंट में खुश रहो. एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट इन लाइफ, ओके, आप जो भी सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा मेहनत करो, अर्न करो. एंड इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सबका है. ओके, बिकॉज हम किसी के लिए बना रहे हैं तो वो हमारे लिए बना रहा है. ओके, मैं किसी कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मैं किसी के लिए बना रहा हूँ. सो यू हैव टू अर्न दैट टू गेट इट. सो या आई वुड से कि ऐसे सोच रखनी चाहिए हर किसी को कि वट एवर यू हैव. इवन मेरा पर्सनल ये है कि मैं ऐसे देखता हूँ, आई एम नॉट लिव लाइफ इज द 2 कैटेगरीज, द लग्जरियस वन एंड द पर्सन हु इज़ लाइक सर्वाइविंग एंड द इंजॉइंग द लाइफ टू. तो मुझे एक फॉर एग्जांपल, मुझे एक 5 स्टार होटल पे भी इंजॉय करना है, मुझे एक छोटा जो होटल है जो ढाबे, हाँ ढाबे पे भी मुझे इंजॉय करना है. सो मुझे दोनों लाइफ को इंजॉय करना है. देन आई विल फील दैट दिस इज़ द लाइफ. अगर मुझे सिर्फ लग्जरी में इंजॉय करूँगा ना, आई माइट can't see that कि नीचे क्या हो रहा है. One more thing, nothing is permanent. People forget this thing. I know that. करोड़पति कब, you know, there is a lot of histories. Yeah. There are a lot of things, a lot of history. जहाँ पे इंसान के पास एक पल को सब कुछ है, दूसरे पल में कुछ भी नहीं है. अगर आप नहीं अपने आप को फ्लेक्सिबल रख रहे हो ना, भगवान ना करे कभी अगर सामने वाले के साथ ऐसा हो, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. राइट. एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है. प्लस ये चीज़ पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप
कम से कम में भी आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करोगे, आपको आपकी बेसिक जो रोजमर्रा के जो काम है वो आपको खुद भी आने चाहिए। राइट राइट, एंड बच्चों को ऐसे सिखाना भी चाहिए। बच्चों को ऐसा सिखाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, या बहुत जरूरी है। okay, it was nice to have you here, the Open Talk Show, and it was pleasure. We talk a lot about lot of things. Okay, I hope कि हमारी जो ये पॉडकास्ट एपिसोड है ये इन्फॉर्मेटिव होगा लोगों के लिए। आई होप सो। थैंक यू सो मच पूरी एपिसोड देखने के लिए। आप मुझे बताइए ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आने वाले एपिसोड के बारे में नोटिफिकेशन मिले।